Good morning, students. Today we are going to start with exercise 2.4, chapter 2nd, class 9th. Now the question number 1 is determine which of the following has x plus 1 as a factor. कह रहा है कि आपको बताना है which of the following polynomial has x plus 1 as a factor. कुछ polynomials मुझे दे रखे हैं और मुझे क्या बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका x प्लस 1 फैक्टर है. तो बाय फैक्टर थ्योरम सेज दैट इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल एंड इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन p ऑफ 1 इज 0. ठीक है, तो लेट अस चेक. नाउ दिस इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -1. नाउ आई हैव टू चेक द पॉलिनोमियल एट वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1. Now my polynomial is first part x cube plus x square plus x plus 1. This is my polynomial. Now student, if this is the factor of this polynomial, then p of -1 must be equals to 0. Now let us check whether it is 0 or not. So this becomes -1 का whole cube plus -1 का square plus -1 प्लस 1. नाउ -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस -1 प्लस 1. नाउ पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स p ऑफ -1 इज 0. तो वी कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ polynomial. Now moving towards the second part. Now second polynomial is x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Now we have to check x is equals to -1 at this polynomial. Now p of -1 is equals to -1 to the power 4 plus -1 to the power 3 plus -1 का square plus -1 plus 1. Now -1 to the power 4 even power है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. This is negative. Now this is again positive. Plus minus -1 plus 1. देखिए positive negative. We will get answer 1. That means कि p of -1 क्या मिल गया मुझे 1. That is not equals to 0. Which says that x plus 1 is not a factor of polynomial. Not a factor of polynomial. Because polynomial का factor होने के लिए मुझे remainder क्या आना चाहिए 0. So p of 1 is not 0. That means it is not the factor of this polynomial. Towards the third part. Third part is x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. Now my polynomial is this. I have to check the polynomial at -1. Let us check. -1 to the power 4 plus 3x -1 to the power 3 plus 3 into -1 का square plus -1 plus 1. Now -1 to the power 4 positive 1 हो जाएगा plus ये कितना हो जाएगा -1 का क्यूब -1 और यहाँ पे आ जाएगा -3. Now -1 का square positive हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया 3 plus minus and plus 1. Now positive negative cancel out. You will get again 1. That means p of -1 is not equals to 0. This implies that x plus 1 is not a factor of polynomial. Now moving towards the fourth part. अभी तक सिर्फ एक पार्ट का पॉलिनोमियल हुआ है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट हमें मिला है रिमाइंडर 0, तो वो फैक्टर था. अभी तक और किसी पार्ट का हमें नहीं मिला है. नाउ द लास्ट पार्ट इज x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2. Now we have to check at p of -1. Let us substitute in place of x. We have to substitute -1. It becomes -1 cube -1 का square minus 2 plus root 2 into -1 plus root 2. अब now -1 का क्यूब कितना आ गया -1. ये माइनस प्लस और यहाँ पे एक माइनस है तो ये -1. नाउ स्टूडेंट ये देखिए ये -1 और ये -1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ये क्या आ जाएगा +2 + √2. नाउ +√2. अब देखिए ये कितना आ गया हमारे पास -2 और ये कितना आ गया +2 और ये कितना आ गया √2 + √2 2√2. अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कट गया और हमें क्या मिल गया 2√2. अगेन इट इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो वी कैन से दैट x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. This completes the question number 1. Now moving towards question number 2. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px. कह रहा है कि यूज करो फैक्टर थ्योरम का, यूज फैक्टर थ्योरम और क्या बताओ कि जो gx है, gx इज फैक्टर ऑफ px in each of the following place. So let us check. Part 1 is आपको बताना है यूज फैक्टर थ्योरम, चेक whether gx is a factor of px or not. तो let us check. px मुझे कितना दे रखा है 2x³ + x² - 2x - 1. ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, आधा लिखा है. ठीक है, नाउ px क्या है मेरे पास, ये पॉलिनोमियल है और gx क्या है x + 1. मुझे चेक करना है कि क्या gx इसका फैक्टर है कि नहीं. तो ऑब्वियसली जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था एग्जैक्टली हम वैसा ही करेंगे. नाउ हियर द gx इज इक्वल्स टू 0, x + 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, x इज इक्वल्स टू -1 पे मुझे ये चेक करना है. अगर तो ये 0 आ गया पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू -1 पे, दैट मीन्स दिस इज द फैक्ट, gx इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो नाउ p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 -1. Wherever you see the x, substitute with -1. Now this becomes negative, तो ये आ गया -2, ये आ गया +1, -2 -1. अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, you will get 0. This shows that gx is factor of px. gx क्या हो गया मेरा फैक्टर ऑफ px. Now moving towards the second part. Second part is now the second part is px is equals to x³ + 3x² + 3x + 1 and gx is equals to x + 2. Now I have to check whether gx is a factor of this polynomial px or not. तो for this क्या करना पड़ेगा हमें, gx को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, that means x + 2 must be 0. So x is equals to -2. Let us check value at p of -2. अगर ये 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है. तो चलिए चेक करते हैं. ये आ जाएगा मेरे पास. ना -2 का क्यूब कितना आ गया -8 आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 आ गया. ठीक है, -3 × 2 = 6 आ गया, +1 आ गया. अब नाउ इनको ऐड कर दीजिए, 6 + 8 -14, 12 + 1 13. तो आंसर कितना आ गया मेरे पास -1. ऑब्वियसली p this is not equals to 0. If it is not equals to 0, this implies gx is not a factor of px. मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ. Now moving towards the third part. देखिए हमें सिर्फ gx को क्या आना चाहिए, gx से x की वैल्यू निकालनी है और px में सब्स्टिट्यूट करनी है. अगर वो 0 आ गई तो हो जाएगा. ये रेड मार्कर आ गया, चलिए लेट्स डू विद रेड मार्कर. नाउ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू
एक्स क्यूब माइनस 4x square plus x plus 6. Now what is gx? gx is equals to x minus 3. अब देखिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, gx must be equals to 0. अगर उसको फैक्टर होना है तो x is equals to 0, x is equals to 3. Now what we have to check? We have to check the value at p at 3. Now सब्स्टिट्यूट करिए, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. Now 3 का क्यूब 27, 3 3s are 9, 9 4s are 36 प्लस 3 प्लस 6. इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा? 3 6 प्लस 3 9, 27 और 9 36 माइनस 36. तो ये कितना आ गया? 0 आ गया. अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? gx is a factor of px. ठीक है, तो hope so this question is clear to you. Now moving towards the question number 3. Now the moving towards question number 3. Question number 3 says that find the value of k. क्या है? Find the value of k. आपको k की वैल्यू निकालनी है. If x minus 1 is a factor of px in the following cases. कह रहा है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है if x minus 1 is a factor of px. Now what is px? In first case px is equals to x square plus x plus k. Since we know that if x minus 1 is a factor, that means कि अगर x minus 1 मेरा factor है तो इसका मतलब क्या होगा? It must be equals to 0, so x is equals to 1. Now we have to check this value at p of 1. ठीक है, and at x is equals to 1 this must be 0. x square plus x plus k हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, this is my polynomial. now पुट करेंगे p of 1. तो ये क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0. नाउ 1, व्हाई इट इज 0? बिकॉज x plus 1 is a factor of this polynomial, and by factor theorem we know that if x minus 1 is a factor if p of 1 is equals to 0. तो p of 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी. दिस इज 1 plus 1 2, 2 plus k, सो k is equals to, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? k is equals to -2. k की मुझे वैल्यू मिल गई -2. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2. नाउ व्हाट आई हैव टू चेक एट p of 1. p of 1 पे मुझे चेक करना है इसको, तो क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए, और p of 1 क्या हो जाएगा? 0. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस k प्लस √2. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस √2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए इस पूरी टर्म को, तो k इज इक्वल्स टू -2 प्लस √2. दिस इज माई आंसर. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट. Third part, p of x is equals to kx square minus √2x plus 1. Now p of 1 पे हम निकालेंगे वैल्यू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, एंड p of 1 is equals to 0. Why? Because x minus 1 is a factor of px. Now this becomes k plus √2 plus 1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इस तरफ करके लिख लें, k प्लस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये माइनस √2 हो जाएगा, ये भी उधर गया तो -1 हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ k इज दिस. नाउ द लास्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं. px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k. नाउ p ऑफ 1 पे निकाल दीजिए वैल्यू. दिस इज k इंटू 1 का स्क्वायर
-3 इंटू 1 प्लस k, तो क्या आ जाएगा k -3 प्लस k, दिस इज 0. नाउ k प्लस k 2k -3 इज इक्वल्स टू 0. तो अब देखिए क्या होगा, 2k -3 इज इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट 2k इज इक्वल्स टू 3. सो k इज इक्वल्स टू 3/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. होप सो दिस क्वेश्चन इज clear to you. Now moving towards the next question. 4. Now moving towards question number 4. Question number 4 is factorize. Now student, we have learned that how to solve or how to factorize by splitting the middle term. Now here we have to make the factors of 12. 12 multiplied by 1. 12 के फैक्टर इस तरीके से निकालने हैं so that क्या आ जाए, प्लस या माइनस करके 7 आ जाए. तो 4 3s are 12. तो साइन का ध्यान रखेंगे बिकॉज हियर इज अ नेगेटिव साइन. दैट मीन्स 4x एंड -3x बोथ शुड बी नेगेटिव. कीप इट इन माइंड, इफ हियर इज अ साइन नेगेटिव देन दिस मस्ट बी नेगेटिव. ठीक है, -4x -3 दैट बिकम्स द -7x. लेकिन अगर आपने साइन कर दिया, दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो साइन का ध्यान रखना है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कीप द साइन करेक्ट. नाउ व्हाट इज द कॉमन बिटवीन 4x? ऑब्वियसली 4x कॉमन है. तो देखिए 12x स्क्वायर में से आपने 4x निकाला. दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय दिस. कई स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि कॉमन कैसे लेना है. तो देखिए कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, जो भी चीज़ आपने बाहर निकाली है उससे इसको डिवाइड करना. तो 4 3s are 12 और यहाँ पे क्या आ गया x. तो क्या बच गया 3x. अंदर क्या बच गया 3x. दिस इज द ईजिएस्ट वे. अदरवाइज आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते थे. 4 3s are 12 एंड x स्क्वायर. तो आपने यहाँ से 4 और x निकाल लिया तो क्या बचा 3x बचा. तो आपके ऊपर है कि आप किसी तरीके से भी इसको इजीली समझ लें. नाउ दिस इज 4x. 3x आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1. नाउ यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी, कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं. अब मैंने -1 क्यों कॉमन लिया, बिकॉज अंदर प्लस है. जब मैं माइनस बाहर लूँगी तो मुझे ब्रैकेट के अंदर भी क्या मिलेगा माइनस. तो अंदर क्या आ जाएगा 3x -1. हमेशा स्टूडेंट याद रखिए कि जब भी आप फैक्टराइज करें ये टर्म और ये टर्म दोनों की दोनों सेम आनी चाहिए. अगर ये सेम नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं यू आर डूइंग मिस्टेक. सो अब मुझे ये दोनों टर्म सेम मिल गई है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 3x -1 ये सेम टर्म जो है उसको कॉमन ले लूँगी यहाँ से. और इन दोनों टर्म में क्या था 3x यहाँ पे भी था, 3x -1 यहाँ पे था. टेक आउट कॉमन आउटसाइड, अंदर क्या बच गया 4x -1. सो दिस इज द factorization of this polynomial. Now moving towards the second part. Second part is 2x square plus 7x plus 3. Now here's 2x square plus 7x plus 3 multiply 2 3s are 6. 6 के फैक्टर करने हैं तो ऑब्वियसली 6 1s are 6. तो क्या आ जाएगा प्लस 6x प्लस x प्लस 3. हमने देखा कि क्या किया हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 6. 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, 2 3s are 6. ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है 6 इंटू 1, 6 1s are. अब इन दोनों को ऐड करने से 7 तो मिलता नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं क्या लूँगी 6 और 1 वाला फैक्टर लूँगी. तो दिस बिकम 6x एंड x बिकॉज 6x प्लस 1x बिकम 7x. नाउ इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3. डिवाइड कर दीजिए इसको 2x से, यू विल गेट 3. अब यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है 1 है. जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ क्या होगा 1 होगा. नाउ x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस इधर भी है. नाउ टेक आउट कॉमन x प्लस 3, अंदर क्या बच गया 2x और प्लस 1. नाउ दिस इज द फैक्टराइजेशन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. देखिए 6 6 36 है, 36 के फैक्टर करने हैं मुझे. तो 36 के फैक्टर करने हैं तो मुझे पता है एक तो 6 6 36 है, एक 9 4 36 है, यही है. ठीक है, 13 3 36 भी है, नहीं 13 2 ठीक है. अब मुझे चाहिए 5, तो ऑब्वियसली ये वाला तो काम करेगा नहीं, ये वाला भी नहीं काम करेगा, लेकिन 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा. तो ऑब्वियसली वी विल टेक
9x माइनस 4x। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया, 9 में से 4 गए तो 5। साइन यहाँ पे पॉजिटिव बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली मैंने बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव लगाया है। अगर मैं -9 + 4 कर देती तो मेरा ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसलिए मुझे लार्जर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन रखना पड़ा। अब नाउ इसमें से कॉमन क्या है, 3x मुझे कॉमन नजर आ रहा है। अंदर इसको डिवाइड करिए 3x से तो क्या आ जाएगा, 2x आ गया, प्लस इसको 3x से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, 2x, और माइनस बाहर ले चुकी हूँ तो प्लस हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या आ गया, 3। अब देखिए 2x + 3, 2x + 3, टेक आउट 2x + 3 कॉमन, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, 3x - 2। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 3x² x - 4. Student, these parts are very easy, but the important thing is sign. Maximum student do mistakes in sign. Now इसको सॉल्व करना है, 3 4 = 12। अब देखिए 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, 4 3 = 12। ऑब्वियसली 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मुझे 1 ही चाहिए। लेकिन साइन देखना है, अब यहाँ पे क्या लगा है, नेगेटिव, तो लार्जर नंबर को नेगेटिव साइन दीजिए और स्मॉलर नंबर को पॉजिटिव दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं हम, -4x + 3x -4। नाउ इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम, x कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा, 3x, x तो जा चुका है, ये आ गया बाहर 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं है तो 1, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3x - 4 यहाँ पे भी है, 3x - 4 यहाँ पे भी है, टेक आउट 3x - 4 कॉमन। अब अंदर क्या बच गया, x बच गया, ये प्लस और ये 1। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस polynomial. Hope so this question is clear to you. Now moving towards the question number 5. Question number 5. Question number 5 is factorize again. First part, x³ - 2x² - x + 2. So student, by mere looking we see that this is cubic equation. Why? Because the highest degree is 3. This is cubic equation, and for solving the cubic equation we have two methods. Number one is by hit and trial method. You can find the one factor, and after getting one factor divide this factor by this polynomial and get the quotient, and quotient should be middle splitting term, and factorize it. Another method is very simple, that take out common. If you can make the common by regrouping it. तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ मुझे कॉमन नज़र आता है इन दो टर्म्स में। अगर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए तो हमें इजी मेथड अडॉप्ट करना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए मुझे x कॉमन नज़र आ रहा है, तो x² कॉमन नज़र आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, x - 2। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन -1 मैं कॉमन ले लेती हूँ। वाई? क्योंकि अगर -1 मैं बाहर लूँगी तो अंदर वाली टर्म क्या बन जाएगी, x - 2, और ये दोनों टर्म सेम हो गई। तो अब मुझे मालूम है कि यहाँ इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x - 2, तो अंदर क्या बच गया, x² - 1। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, होने तो चाहिए 3। नाउ इट कैन बी कंसीडर्ड एज a² - b²। आई कैन राइट इट लाइक दिस, x - 1 x + 1। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, a² - b²। आइडेंटिटीज आप आगे पढ़ेंगे। दिस इज a + b, a - b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए। तो यू कैन डू इट लाइक दिस बाय सिंपल वे। अदरवाइज यू कैन डू इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। गेट द वन फैक्टर, डिवाइड दिस बाय, डिवाइड द पॉलिनोमियल। So it's up to you. You can solve it by simpler one. Now moving towards the second part. x³ - 3x² - 9x + 5. Students, first you have to check it कि if अगर तो कोई कुछ कॉमन निकलता है तो मैं इसकी तरह सॉल्व कर लूँ, लेकिन अगर कॉमन नहीं निकलता है तो हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड ही रह जाता है। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है, बिकॉज x3 और यहाँ 9 और 5 है, तो कॉमन से बात बनने वाली नहीं है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे लॉन्ग प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस होल पॉलिनोमियल बिकम 0। तो लेट अस चेक, 1 डाल के चेक करते हैं। देखिए 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर
-9 into 1 -5. This is 1 -3 -9 -5. तो ऑब्वियसली देखिए ये तीनों इतने बड़े नंबर है, ये तो 0 होगा नहीं, ठीक है। नाउ ये हमारा फेल हो गया एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। नाउ x इज इक्वल्स टू -1 पे चेक करते हैं। -1 पे देखिए -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। अब -1 का क्यूब कितना हो गया, -1 हो गया, ये -3 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस तो -3 माइनस माइनस प्लस 9 -5। अब इसको ऐड करिए, 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो -9 + 9 ये क्या मिल गया मुझे, 0। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू -1 मेरा पॉलिनोमियल पूरा क्या हो जा रहा है, 0। तो इसका मतलब x + 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। वहां से हम बाकी दो फैक्टर, इसके रिमेनिंग फैक्टर्स निकालेंगे। तो लेट अस डिवाइड, यहाँ पे लिख लेंगे x³ -3x² -9x -5। अब मैं डिवाइड करूंगी किसके साथ, x + 1 के साथ। सिंस x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट मीन्स आई गेट द रिमाइंडर 0। नाउ x को बनाइए x³, तो ये आ जाएगा x², यहाँ पे आ गया x³। नाउ 1 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x², तो यहाँ पे आ जाएगा x²। नाउ साइन चेंज करिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 4x², ठीक है। और साइन आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 9x -5। अब हमें x को क्या बनाना है, -4x², तो -4x मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -4x²। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया 4x। अब साइन फिर से चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया। नाउ प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5x, साइन बड़े वाले का आएगा तो हमने यहाँ -5x लगा दिया और यहाँ से उतर गया -5। नाउ x को मुझे क्या बनाना है, -5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस बिकम्स -5 एंड प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। साइन चेंज करिए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर मिल गया 0। Obviously you will get the remainder 0. If you are not getting the remainder 0, that means you are doing some mistake. So the calculation should be clear and correct. Now we get the quotient x² -4x -5. Now factorize by middle splitting term। 5x, मुझे 5 के फैक्टर्स बनाने हैं, क्या आ जाएगा, -5x + x। मैंने क्या बनाया, 5 1 ज़ा 5, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन रख दिया, 5 में से 1 गया तो -4x। नाउ टेक आउट कॉमन x, x -5 + 1 ले लीजिए, x -5, सो दिस बिकम्स x + 1 और यहाँ पे आ गया x -5। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये दो फैक्टर और तीसरा फैक्टर ये x + 1। सो these 3 are the factors of this cubic polynomial. So this is the whole method how we solve the cubic polynomial. Hope so this method is clear to you. Now moving towards the next part. Now the third part is x³ + 13x² + 32x + 20। पहले तो मैं चेक करूंगी कि क्या कुछ कॉमन होके सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पे x है, 13 है, 32 है, 20, ऑब्वियसली कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे लॉन्ग मेथड से ही जाना पड़ेगा। नाउ लॉन्ग मेथड से जाने के लिए सबसे पहले हिट एंड ट्रायल करना है। अब देखिए अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो ये 0 कभी भी नहीं आएगा। वाई, बिकॉज ये सारी टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव। तो मैं चेक करती हूँ एट x इज इक्वल्स टू -1 से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो आपने ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस रखनी है कि अगर 1 से करेंगे तो ये कभी नहीं आएगा 0। वाई, बिकॉज ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव। तो चेक स्टार्ट फ्रॉम द -1। सो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। नाउ -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पे आ जाएगा +13, ये आ गया -32 प्लस 20। नाउ नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लीजिए, ये और ये दोनों आ गई -33 और इन दोनों को ऐड किया तो ये भी आ गया पॉजिटिव का 33। दैट मीन्स यू विल गेट
0. So x minus x at x is equals to -1, polynomials become 0. अगर x -1 पे polynomial 0 हो जाता है तो इसका factor क्या हो गया? x plus 1 is the factor of this polynomial. I get the one polynomial by hit and trial method. Now I divide this factor by this polynomial. Let's divide. Now this is x cube plus 13x square plus 32x plus 20, and this is x plus 1. Let us divide. Now x should be x square, it becomes x cube. Now plus x square से करेंगे, ये साइन चेंज करिए, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज 12x square plus 32x plus 20. Now x should be make plus 12x. This becomes 12x square plus 12x. साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये 0 आ गया 20x. साइन पॉजिटिव बड़े वाले का आएगा बिकॉज 32 इज द लार्जर नंबर. 20 एज इट इज उधर गया. नाउ x को क्या बनाना है? 20. तो प्लस 20 करिए, you will get 20x plus 20. Now sign change करिए, again I get the remainder 0. That means my calculation is correct. Now the quotient is x square plus 12x plus 20. अब इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है. तो obviously 10 2s are 20, 10 plus 2 is 12. तो 10x plus 2x plus 20. Now what is common? x plus 10. Take out 2 common, x plus 10. तो क्या आ जाएगा? x plus 10. यहाँ से मुझे कॉमन ले लीजिए, दोनों टर्म में x plus 10 है, अंदर क्या बच गया? x plus 2. देखिए ये दो फैक्टर ये और तीसरा फैक्टर ये, तो क्या हो गया? these are the three factors of this cubic polynomial. Hope so ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा. Now moving towards the last part of this exercise. Last part is 2y cube प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी क्यूबिक इक्वेशन मिले तो कोशिश करना कि अगर रीग्रुपिंग करके कॉमन लेके सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, बजाय कि हम इस लॉन्ग मेथड में जाएं. तो लेट अस चेक कि क्या कुछ कॉमन निकलता है. लग रहा है क्योंकि 2y 2 1 ऐसा कुछ है. तो टेक आउट कॉमन वाई स्क्वायर, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2y प्लस 1. अंदर यहाँ से मैं कॉमन लेती हूँ -1, 2y प्लस 1. ठीक है. अब देखिए 2y प्लस 1 यहाँ पे भी है, 2y प्लस यहाँ पे भी है. टेक आउट कॉमन, अंदर क्या आ गया? वाई स्क्वायर माइनस 1. अगेन आपको दो ही फैक्टर्स दिख रहे हैं. तीसरा फैक्टर निकालने के लिए आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस 1 a माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट्स. लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इस मैथड से करते हैं तो ये इस मैथड से भी सॉल्व होगा. ठीक है. तो इसमें नो हार्म कि एग्जाम में आए तो आप छोटा सा 3 मार्क्स का भी आएगा. यू विल डू इट बाय दिस मैथड. द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. But if you are doing like this is also correct. It's up to you which you are choosing, which method you can choose. Hope so this exercise 2.4 is complete and it is clear to you. Thank you students.